स्वाति साचू बोल बेटा, डू यू लाइक दिस प्लेस? વેરી મચ એકદમ મજા એનર્જી મળી ગઈ? હા સર એકદમ અલગ એનર્જી આવી રહી છે. Peaceful and energetic. Peaceful and energetic. બીજું? બીજું calm, quiet, zero disturbance. હાય હાય. પછી દુનિયાથી દૂર. વાવ. અને મે બી થિયેટર ને મોલ જોવાય કે આવી જગ્યા પર જવાય? આ જગ્યાએ જવાય. કલાકારો તો આવી જગ્યાએ ફરવું જોઈએ. આ જગ્યાએ જ જવાય. થિયેટર બી નહીં. અને આ જગ્યાએ જવાય. તારા માટે ફર્સ્ટ છે ને હા. પ્લેસ? યસ સર. થેન્ક યુ. આપણે નેચરલ પ્લેસ આપતો સાવ સામે જોતા. થેન્ક યુ. બ્રાહ્મણ ખરેખર તો પારિકતાને આશીર્વાદ આપવા જોઈએ બ્રાહ્મણે. મારી મનોકામના પૂરી અમારા જેવું ફ્રેન્ડ અમારો નંબર તમારો. ભાઈ આ બાજુ જુઓ બધા. હા લઉં છું. સ્ટાર્ટ કરો, વાંધો નહીં.
આ પ્લેસ શું છે કઈ રીતે સરે ફાઇન્ડ આઉટ કરે આફ્ટરવર્ડ સર કહેશે કે સર કેમ અહીંયા લઈને આવ્યા તમને લોકો? છોડ દો. યુ આર ગોડ. તમે કુદરત છો તો કલર મૂકે છે કુદરત એ રીતે કલર મૂકો, સ્પ્રેડ કરો એને. તમે ડેમોમાં શું જોઈ રહ્યા છો મને કહો પહેલાં. ચલો એટલે જસ્ટ હું તમને ડિસ્કસ કરતો જઈને કામ કરતો જઈશ. કેટલું પાણી લો છો, કેટલો કલર લો છો અને કેવી રીતે સ્પ્રેડ કરી છે. ટ્રાન્સપરન્ટ અત્યારે કલર કરું છું. ઓકે. એને આપી દે ને, એને જે કહું આપી દે. તમારે કરવાનું, સમજાવો મને. તમે જે કલર તમને જે દેખાય છે એને સોફ્ટ કલર તમારે કલર છોડી દેવાનો, પાણીનો ઉપયોગ વધારે કરવાનો છે. પછી બોર્ડને તમે જે તે પ્રમાણે મુવમેન્ટમાં રાખીને કલર ઓટોમેટિક મર્જ થવા દેવાનો. વેરી ગુડ. કેમ કે નેચર છે, નેચરમાં હાર્ડ કલર ના હોય. વાહ, ક્યાં વાત. આવ્યું ને, ક્યાંથી આવ્યું? ડેમો ડેમોમાં. તો સી ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ. એટલે અને તમે કઈ સરફેસ પર કામ કરો છો? પેપર નથી, કેનવાસ. બધા જ મીડિયમના સ્ટેપ મેં તમને સ્ટુડિયોમાં સમજાયેલા છે. હવે તમે કયા સ્ટેપમાં કામ કરો છો ને તમારે શોધવાની કામ છે અને તમારે કામ કરવાની જરૂર છે, મારે નહીં. મેં તમને એક ડેમો આપ્યું. સી એટમોસ્ફિયર આવી ગયું, આટલું છોડી દો. જરૂરી નહીં કદાચ આ ક્લાઉડ ના થયું કારણ કે પાણી અડી ગયું વધારે તો ગભરાવાની જરૂર નથી કે કેમ મારા આવું ના થયું. હવે આને લેયર ચડાવવું હોય ને તો સેકન્ડ લેયરમાં હું ક્લાઉડની ઇમ્પ્રેશન લાવી શકું છું. આ બગડે નહીં, સુધારી શકાય. બગડ્યું હતું કે કઈ રીતે. હવે જે પહેલું લેયર કર્યું એ જ પ્રોસેસથી અહીંયા લેયર કરવાનું, સેકન્ડ લેયર, પછી એમાં નાનો બ્રશ યુઝ કરવાનો. એ ટ્રીટમેન્ટ પછી સમજાવીશ. એટલે સી ધીસ ટ્રીટમેન્ટ કઈ રીતે. એની પ્રોબ્લેમ્સ કોઈ વધારે? સોનલબેન ઓકે ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. આપી દો એને આપી દો. કોઈની રાહ નહીં જોવે એટલે હું વહેલું જમવાનું બનાવું છું, મને ખ્યાલ છે. હા બાપ પારી આપી દે, જે જે જોઈએ આપી દે. પછી છે ને તમને એમ લાગે
કે આ ટ્રીટમેન્ટ આ રીતે કરવાની આમ જે છે ને જે ટ્રીટમેન્ટ જે છે ને ટ્રીની ટ્રી આની આની મને આકાર છે કારણ કુદરત છે, કુદરતે કરેલું ગ્રાફિક્સ છે. તો એ જે ગ્રાફિક્સ છે ને એને ફોલો કરો ખાલી પ્રોસેસમાં. પ્રોસેસને સમજીને કામ કરો. આ બ્રશ તમને યુઝ કરવાની માટેની પ્રોસેસ તમને આપી દે, બધા બ્રશ યુઝ કરવું સાચવવાની જવાબદારી તમારી છે. ઓકે, જમ્યા પછી કરવાનું છે. ચલો બધા પહેલાં જમવા. કલરનું એક ગ્રામર છે, કલર છે ને એની વિડીયો જ કામ કરતો હોય છે. તમે હજી ગભરાતા હતા કલર મૂકતા? બધાય ગભરાય આવી રીતે મૂકતા તો અમે બીક લાગે અમે સર એક પથ્થરમાં પાણી મૂકતા હતા, ગભરાતા હતા તો બધાય એક પથ્થરમાં કલર મૂકતા હતા. એ પથ્થરનો કલર બીજા પથ્થરમાં ચડે ને એટલે ટેન્શન વધતું. આના માટે સોરી, આના માટે છે ને પ્રેક્ટિસ બહુ જોઈએ સર. યસ તો આટલી હિંમત નથી આવતી એ જ અગત્યની એક વાત. એક વસ્તુ છે, સર જે કોન્ફિડન્સથી કલર મૂકે છે ને એ કોન્ફિડન્સ આપો. રેડતા જાઓ, કરતે જાઓ. गिरना लेकिन गिरनार पे चढ़ के मत गिराओ. બ્રશ ને બધું છે ને બેટા, પેલા પાણીના બાઉલમાં ઊભું કરી દે બધું. મને કે ડન, તમારે શું જોઈએ? મેં કે રોલર જોઈએ છે, આ જોઈએ છે, આપી દો. એકદમ પૈસા જોઈએ? મને કે નાના સર આની યુટિલાઇઝ કરી કે આની સરફેસ નીચેના ઓઇલ પેસ્ટલ્સ દેખાવા લાગ્યા. ગ્રેટ. સમજ પડે છે ને? બહાર લાવવું, છોડવું, દબાવવું, અપ કરવું. ઘસવું. હા, એટલે હું તમને એ જ કહી રહ્યો છું કે ડેમો કોઈ આર્ટિસ્ટ જતો ને કે ઘણા લોકો ડેમો ચાલતું હોય ને તો ઘણા બાજુમાં સેલ્ફીની વાત કરે, ફોટોગ્રાફ લેતા હોય, બીજી કોમેન્ટ્સ હોય ફોન પર. અરે યાર, તમે એક ડિસિપ્લિન હોય છે ડેમો જોવાનું, એક ડિસિપ્લિન હોય. જો એ તમારામાં ના હોય ને તો તમે ક્યારેય કેપ્ચર ના કરી શકો. એટલે એ તમે જે કેપ્ચર કરો છો ને એ અત્યારે ફાઇન આર્ટ્સનો સ્ટુડન્ટ નથી કરતો. ખાલી છે ને એને હવા હોય છે કે હું ખરું આવું અને સીધો ફાઇન આર્ટ્સમાંથી ઘૂસેલું બહાર નીકળ્યું એક પેઇન્ટિંગ 70,000માં એકવાર વેચાઈ ગયું. એટલે હવા એક કાનમાં બુટ્ટી આવી ગઈ ને હવા લાગી ગઈ, બગલ થયેલો ઇમ્પ્રેશન બની ગઈ. એટલે લુક એની પર છે કે કેનવાસ પર છે? હું તો બહુ કડવું સત્ય બોલું. અને મેં છોકરાઓને એટલે જ કહું છું કે મારી પાસે એટીટ્યુડ વાળા છોકરા ના આવવા જોઈએ. મને મારા છોકરા છે ને આમ એક બેસીને જોવે કે આ આજ મજા આવી ગઈ યાર. એક પેલું બ્લેડ લાવે પતલું. બધી જ વસ્તુ કલર પુટ્ટી. સંપૂર્ણ ગીતા છે. બધા સવાલના જવાબ આમાં જ છે. તમારા જીવનમાં એક સારામાં સારો ગેમ છે આ. યસ. અને શો વખતે છે ને એકચ્યુઅલી સરની આઈડેન્ટિટી છે ને સર તમારી. હા, મારી આઈડેન્ટિટી છે આ અને હું આ તમારી સામે રજૂ કરી દઉં છું. થોડું પેઇન્ટ ડ્રોઈંગ કર્યું, છોડી દીધું, પાછું દોર્યું, છોડી દીધું. એ છોડી દેવાની સ્ટાઇલ છે ને બહુ મસ્ત છે. અત્યારે જો પહેલાનો ટેક્સચર બહાર આવી રહ્યો આપણે છોડતા નથી એ મોટી બેટ છે ને આપણામાં. મોટી વાત જ એક્સપેરિમેન્ટેશન. કરેક્ટ. મરાઠીમાં એક કહેવત છે, બોલો બોલો. વેટ કરીએ. અનુભવ સિવાય માણસ શાણા હોત નહીં. સાચી વાત છે. આપ મરે સ્વર્ગે પહોંચાયની એક કહેવત.
તમે એક્સપેરિમેન્ટ કરશો, જોઈ લીધું, ઘરે જઈને એક્સપેરિમેન્ટ કરશો તો તમને કંઈક શીખવા મળશે, એના અંદરથી બીજી કઈ આઈડિયા આવશે. પણ તમે કરો તો આવે, વચમાં મોટો તો છે. તો પડે ત્યાં થાક લાગે. પછી ભૂખે લાગે. ભાઈ પાકા વિદ્યાર્થીઓ મારા, હવે તો કાચા નહીં પડો, હિમાલયમાં જાવ તો એમને છે ને આપણે કેમ્પમાં જશું, આમ કરશું, એ એક આનંદ છે. આ બધું જવું પડશે, કરવું શું કેવું? પડશે. જમીન બોલ બેટા બોલ એ સરે પ્લાન કરી દીધી. તમે લોકો પકડી નહીં. આ કરી દીધી સરે, ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી લીધું. હવે તો બનાવી થઈ ગઈ ડિસ્કસ. નેક્સ્ટ યર મનાલી જવા માટે. મારી ફ્રેન્ડ છે નેક્સ્ટ યર નહીં દીવા. માઉન્ટ આબુના કેમ્પમાં હતી, સાંભળ, દિવાળીમાં બધા બોયઝ અને એ બોલ્ડ છોકરી રાજ નંદિની, અને મારી સાથે કેમ્પમાં આવી હતી ને તો મને કે વિનોદભાઈ આપણે ડિસ્કસ કરીએ, શાંતિ બેસીએ, અમે કામ કરી રાત્રે ડિસ્કસ કરીએ. મને કે તમે એક એનર્જેટિક એક પર્સન તરીકે કામ જ કર્યા કરો છો, બધા સાલા કેવી વાતો કરે. મેં આ કરવા દે બેટા, આપણે છે ને મને કે મારું એક ડ્રીમ છે. મેં કેવું? મને કે હું એ પૂરું કરીને બધા. કેટલા વાગે નીકળવું છે પહેલાં મને કહી દેજો. સર 8 વાગે. હાય ડિનર કેન્સલ. સર એકચ્યુઅલી 8 વાગે સુધી રહેવા દો. ગાય ના કરતા પ્લીઝ, કે 5 વાગે આવો, બધા નીકળો ના તો કરતા. પછી અહીંયા 8 વાગે જ હોટલમાં ખાઈ જઈએ. લીધો હતો તો આવો. ડિનર ભલે કેન્સલ આપણે તો વહેલા ના, કેન્સલ ભલે ન કરવા, કરતા જ નહીં, ડિનરની આખું પણ આપણે process આટલા બધા વહેલા 7:30 વાગ્યામાં પહોંચી જવાના છે, તો એટલું તો જલ્દી એક કામ શું છે કરીએ, એમ. તો પછી ડિનર તો લેટ કરીએ. ચલો લેટ જ કરીએ ને. સનસેટ ઓકે, હા, સનસેટ જોઈને. ચલો તો પછી હું ત્યાં ડિનર માટે કહી દઉં 8 8:30. 8:30 કહો સર. હા હા કોને વાંધો છે? મિલન ને આંગીનો પ્રોબ્લેમ હતો. ચોકલેટ મળવાની હતી એનો પ્રોબ્લેમ હતો. આંગીને ચોકલેટનો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે. તમે લોકો એ સમજતા નથી. વેલેન્ટાઇન ડે છે. હા તો સર મિલન તમારા નામે ચરી ખાય છે હો? મને એમ ક્યારે ધક્કો લાગ્યો. જો મને ક્યારે ચરવાની કોશિશ નથી કરી, મને એ નથી એટલે મને મારા નામે ચરતા નહીં, મહેરબાની કરીને. એ કહે છે કે સરના વાઈફને ઇન્વાઇટ કર્યા છે સરે, એટલે આપણે ટાઈમે પહોંચવું જ પડશે એમ. ને તો સને લાકડી મળશે. ના હું તો એમ કે બિચારી તો બોડી જેમ જ કહે છે કે હા તમે લેટ કરશો. વાંધો નથી. ઘેર ખાઈ લઈશ. ના મારા ભાઈબંધ છે ને એ બિચારા બહુ વેલેન્ટાઇન ડે મારા મિત્ર છે. દ્રષ્ટિના પપ્પા ના એ લોકો નહીં, મારા બીજા એક મિત્ર છે ને એ મને કહે કે રાઈટ ટાઈમ નહીં કહું, રાઈટ ટાઈમ તો રહીશ પણ બને ત્યાં સુધી થોડું મોડાવેલું થાય, ટ્રાફિક નડે તો હું પછી કહી દઈશ થોડું ટ્રાફિક નડશે મને, એટલે મારે એક જ બાનું હોય, બીજું કંઈ ના હોય ટ્રાફિકનું. એટલે મેં બધા સમજી જતા હશે. હા સમજી જતા હતા, બોલે નહીં, એ સમજે છે કે બિચારા. કહી દો સર, આજે આર્ટિસ્ટનો મૂડ છે. મૂડ થશે, 8:30 વાગશે એમ કહી દેજો. હું ક્યારેય દિવસ ટાઈમ ખાલી છે ને એટલું જ કહી દઉં, મને લેટ થશે બસ આટલું જ કહી દઉં. લેટ થાય એટલે તમે વેઇટ ના કરતા, તમે તમારું બધું પતાવી દેજો, વાત પતી ગઈ. બસ આ તો વેલેન્ટાઇન ડે છે એટલે મારે એક એમ થાય કે બધા સાથે એકવાર પહેલી વાર મળે છે ને એક મજા આવે એમ. મેં મારા મિત્ર છે ને બિચારા એ મારા ઘરે એમ કે ભાઈ દિયા કરે છે હમણાં સ્કેચ હવે. દિયાનું કામ સરસ છે. એક મોટો જાડો બ્રશ હશે. હાર્ડ બ્રશ છે સર? આ બ્રશે મને સોલિડ કામ શીખવાડ્યું છે. ક્યારે? કયું આ આ જાડું? બ્રશ કદાચ જાઓ ને કેળા ગોબલેજ ચોકડી પાસે તો પિયુષ પેલેસ છે એ એની તમે ઉપર. હા તમે કર્યું છે ને એ જે છે ને એ ડોમ મેં કર્યો છે. આમ કરીને મેં 6 મહિના કામ કર્યું છે બાપરે. અને આ બ્રશથી કામ કર્યું છે. આ બ્રશ મારો પ્રિય બ્રશ છે, જે બ્રશમાંથી મેં ઘર બનાવ્યું છે. એટલે હું જીવની જેમ સાચું છું, મારી નજર સામે જોઈ છે. અને એ આ બ્રશથી જે ટેક્સચર લાવે છે ને અજંતા ઇલોરાની ઇમ્પ્રેશન આખી. એટલું જૂનું છે એમ? હા એટલું જોજો ને મેં ક્યારેક જાઓ ને ખેડા ચોકડી પાસે ગોબલજ ચોકડી કહેવાય બેટા. પિયુષ પેલેસ છે સૌથી મોટો પ્રોજેક્ટ મારી લાઈફનો.
એ છે જ્યારે મારી પાસે હું ઘરથી જુદો થર્ડ ફેમિલીથી ત્યારે પૈસા નહોતા મારી પાસે, સ્કૂલ ક્લાસ, અને ત્યારે જમીન અવારનવાર મારા સ્ટુડિયોમાં આવતો પાછળ. નહીં જમીન એટલા જૂના સ્ટુડન્ટ છે તમારા? 5મા ધોરણમાં હતો ત્યારથી જ. હે તમને બતાવીશ એની વિડીયો. જહાંગીર આર્ટ ગેલેરીમાં હું ગયો હતો ને પહેલા. એ બી કરતા હતા, તમે બી કરતા હતા આવું બધું? NID નો સ્ટુડન્ટ છે બેન, ઓહ 12મું પાસ. અને રડ્યા એના પપ્પા મારા આગળ. હું ના રડ્યો. એ ના રડ્યો, કેમ? બસ જો ફેલ હોતા હોય તો આગે જસ્ટ આગલા જ દિવસે હોમ થિયેટર કરી દીધું. મારું મગજ એમાં હતું. ધેટ્સ ગ્રેટ ઓફ યુ. છે જ બેન, બતાવીશ તમને ડોક્યુમેન્ટરી. દીવની જે સર્કિટ હાઉસની અંદર જમાડ્યો છે, પૂછો આવ્યો. આમ રાઈટ ને? અને સોફાની અંદર મસ્ત આમ આડો પડ્યો છે, અને બધા છોકરા આડાવડા થતા ત્યારે એ પડ્યો ત્યારે મેં એની કેપ્ચર કરી છે, એની મુમેન્ટ. બધા કોક દાડો ક્યાંક આગળ હશે. એના પપ્પાને બતાવ્યું હતું તમે? બધું જોયું. એના પપ્પા રડ્યા હતા, મને કે સાહેબ કંઈક કરો, આ તો હારો 12મા નપાસ થયો. આગલા દિવસે મેટ્રિક્સ 1 જોઈ હતી, એ દિવસે મેટ્રિક્સ 2 જોવાનું હતું. મારા મગજમાં ક્યુરિયોસિટી આવતી હતી કે હવે next શું છે. કઈ સ્કૂલમાં હતા તમે? મારી સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થી અચ્છા. પારિતા, આયુષી, આયુષી જૈમિન, પણ? બધા અચ્છા. વિદ્યાનગરમાં તો ઘણી કલા ભરેલી છે બેન. આહા. ધવલ મારો વિદ્યાર્થી, આનો મિસ્ટર. એ વિદ્યાનગર ભણેલા છે? એની બેન પણ વિદ્યાનગરમાં ત્યાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં છે. ઘણી ખોપડી છે. આ સૌમ્ય જોશી, અભિજાત જોશી શું છે, અમારી સ્કૂલના જ વિદ્યાર્થી છે ને બેન. 3 ઇડિયટ્સ લગેરો મુન્નાભાઈ લખનાર. તો આપણે બિલીવ કરીએ કે આ છોકરામાં આવી સેન્સ હોય, અને એ છોકરા ડફોળ હોય, અને એ જ છોકરા આગળ જાય છે. 90% કરીને તો શું કહે નથી સમજતા ને. બધાને કે સાહેબ શું રવાડે ચડો. Parents થયા પછી એ ભૂલી જાય કે પોતે બી બાળક હતા. સ્ટુડન્ટ હા, એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. સાચી 100% સાચી વાત છે. 100% સાચી વાત છે બેન, અને હું એની સાથે સંમત છું. કેમ? પેરેન્ટ્સ પોતે ભૂલી જાય છે કે પોતે બોલો સાહેબ બેટા પેલો મને. બી સ્ટુડન્ટ હતા એમ. એમના પપ્પાને કેટલું રિઝલ્ટ આપ્યું? એ નર્સરીમાં બી ફૂલ માર્ક્સ જોઈએ છે બધાને, પણ એવું નહીં વિચારતા તમે ફૂલ માર્ક્સ લાવતા હતા નર્સરીમાં હતા, તમે ભણતા હતા એ ખરા? અત્યારે તો વધારે કલ્ચર તમને તો શું કપડાં જમીન પહેરવાની જમીન ખબર પર નહોતી. શું બોલ્યો જમીન? જો મેં શું બોલ્યો? એમાં એવું પેરેન્ટ નાના હતા ને તો ચીપિયાથી વાળ સ્ટ્રેટ કરતા હતા. હવે સ્ટ્રેટનિંગ આવી ગયા છે ઇલેક્ટ્રિક. જેમીને ખબર છે, અમારા સ્ટુડિયો પર જો ઇન્ટર્ન ભણતો હોય ને અને એ ભૂલથી કહી દે ને કે મારો પહેલો નંબર આવે છે, તો અમે આને અંડરલુક કરીએ બહુ કે એને પહેલો નંબર આવે છે. ક્યાંથી? પહેલેથી કે આગળથી કે પાછળથી? ના, આગળથી. એટલે આગળથી ક્લાસ ફર્સ્ટ આવતો હોય ને તો અમારી જોડે 2 વર્ષ રહ્યો હોય એટલે 3જા વર્ષે કા ડ્રોપ આઉટ હોય, કા ત્રીજો નંબર આવવા લાગ્યો હોય, કા એક્ઝામ ભરવા ના જવાતી હોય, બીજી વસ્તુ લાઈફમાં પ્રાયોરિટાઇઝ થઈ હોય. મારી છોકરી અમેરિકાની તો નાની શું કે ખબર હે? બહુ ભણતી નહીં. મને એમ થાય કે યાર હું અમને શું સમજાવું, કઈ રીતે સમજાવું. પછી ધીરે ધીરે ખબર પડવા માંડી કે આ તો આવું ફિલ્ડ હોય ને આ રીતે ને. પછી તો 87માં ભાગી ગયો મુંબઈ. આ અમોલ પાલેકર સાથે મારો ફોટો છે, બતાવીશ તમને. અને મુંબઈમાં પહેલાં જ અમોલ પાલેકર મળ્યા. મને કે ગુજરાતી છો? મેં કીધું ગુજરાતી છો. મને કે બહુ સરસ. મને કે આપણા ઉત્સવમાં તમારું સ્વાગત છે ને અમને ત્યાં. પછી આઈ કાર્ડ આપ્યું અમોલ પાલેકર સાહેબ સાથે, એના અદિતિ મહેતા, વેસ્ટ ઝોન કલ્ચર સેન્ટરના ઉદયપુરના ડાયરેક્ટર. આ મારી પહેલી પ્રોસેસ અને પહેલું ઇન્ટ્રોડક્શન. મુંબઈ ભાગી ગયો. પંચી બેગમાં પેલું ડબ્બું આવે એની રાહ જુઓ. કારણ કે એ મૂક્યા વગર બધું મૂકીશું ને તો પાછું બધું આ બી સરનું જ છે. सो हाय एवरीवन, मैं आयुषी हूँ और आज हम यहाँ पे हैं साबली में आर्ट कैंप है जो विनोद सर ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है. हमारे साथ है आर्टिस्ट विनोद पटेल.
Hello Vinod sir, how are you? नमस्कार Welcome sir. जी, नमस्कार। On behalf of Vinod sir and from our team of students, I welcome all of you here at Sabli, live from the art camp. तो विनोद सर बताइए, कैसे आपने डिसाइड किया कि आपको आपके स्टूडेंट को यहाँ पे लेके आना है आर्ट कैंप के लिए? ऐसे तो मेरा बचपन का एक शौक था, मेरे को ऐसी जगहों पे घूमना, तो उनमें से मेरे को कुछ एक दिमाग में ऐसा आइडिया आया। ऐसे तो मैं फ्रीलांस आर्टिस्ट भी हूँ, एक टीचर भी हूँ, तो जिस तरह से मेरी जो जर्नी है स्कूल की, तो बच्चों में जो स्कूल में ड्राइंग सिखाया जाता है ना, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उनको भी बाहर एक लेके जाके कुछ करना है, मगर स्कूल के जो लिमिटेशन की वजह से मैं नहीं ले जा सकता था। हाँ। मगर मेरे दिमाग में ऐसा चलता था कि जो मेरे पास जो बच्चे हैं ना, उनको भी ऐसी जगह पे ले जाऊं और ऐसा कुछ कराऊं। तो नेचर के साथ मेरा एक जो अटैचमेंट है ना, उनमें से मेरे को बहुत सब कुछ सीखने को मिला। मतलब आर्टिस्ट है ना, एक कुछ लेता है नेचर में से। Exactly. तो मेरी बात ये है कि भी एक मैं आर्टिस्ट हूँ, ऐसा कोई छोटा बच्चा भी आर्टिस्ट होगा जो फैकल्टी नहीं की, मगर ऐसी जगहों पे जाके कुछ सीखे और पाए और लोगों को बताया कि नहीं, मैं भी ऐसे नेचर में लाइव किया है, दिस इज़ माय लाइव वर्क। तो मैं अंदर से जो मेरी अंदर की जो आवाज़ थी ना, मैं कई सालों से कर रहा हूँ, 35 इयर्स से मैं कर रहा हूँ। तो मेरा एक जो अंदर का आवाज़ था, तो वो मैं यहाँ एक साबली प्लेस है, महाकाली का मंदिर है, वो मेरा फेवरेट प्लेस है। मैं बहुत साल यहाँ आ चुका हूँ और बहुत सारे यहाँ पर कैंप कर चुका हूँ। तो इस साल जो नए बच्चे थे, तो उनको भी इनको यहाँ पर लाना था, इसीलिए मैं एक कैंप का आयोजन किया है। सही बात है, इतने टाइम से पैंडेमिक की वजह से सबके सब घर में बैठे हैं। वेरी नाइस। कुछ बोर हो चुके हैं, कुछ लोग स्ट्रेस हो चुके हैं जी। कहीं ना कहीं जो उलझने हैं उसको सुलझाने का एक ये सबसे अच्छा तरीका है। तो आपके जो स्टूडेंट है ऑलरेडी आर्टिस्ट है और उसको उन सबको आप यहाँ पे नेचर पे लेके आए हैं जी। तो सर एक तरीके से अगर देखें तो ये लोग अगर नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, ये सब पैंडेमिक भुलाने का एक सबसे अच्छा तरीका है। हाँ। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ स्टूडेंट वर्किंग हियर। हेलो मित्तल, हाउ आर यू? हाउ आर यू फीलिंग हियर टुडे इन नेचर? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक्चुअली आई एम वेरी मच एक्साइटेड। ये कैंप के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने पहले भी सर के साथ कैंप किया है। अच्छा। एंड आई न्यू कि बहुत मज़ा आएगा। और जो हम स्टूडियो में काम करते हैं और बाहर आकर जो काम करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब हमारी एनर्जी अलग है और बहुत मज़ा आ रहा है। और उसकी वजह से आपकी पेंटिंग पे कोई इफेक्ट होता है क्या? हाँ, वो तो डेफिनेटली। जैसे हम लोग स्टूडियो में काम करते हैं तो वो फिक्स एनवायरनमेंट रहता है। यहाँ पर जैसे हम घूमते हैं, हम जो आसपास कलर्स देखते हैं और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि पीछे पूरा जो लैंडस्केप है यहाँ पर, तो उसके जो कलर्स है वो सारे भी हमारे अंदर से जो क्रिएटिविटी आती है तो उसको इम्पैक्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली, दैट इज़ वेरी ट्रू। यहाँ पे साबली पे इतनी खूबसूरत जगह है, सामने लेक है, पहाड़ है, ग्रीनरी है और इतनी खूबसूरत जगह के बीच में सारे के सारे स्टूडेंट बैठ के पेंटिंग कर रहे हैं। तो उनकी जो फीलिंग्स है, उनका जो एक्साइटमेंट है वो उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। हेलो भारती आंटी। हेलो, कैसे हो? बस एकदम मजे में। तो क्या पेंट कर रहे हो आप आज? आई एम पेंटिंग दिस पिक्चर। या एक्रिलिक पेंट। इट इज़ एन एक्रिलिक पेंट। तो कैसा लग रहा है आज यहाँ पे बहुत अच्छा, नेचर के बीच में बैठ के आप पेंटिंग कर रहे हो? दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, मेरा पहली बार है यहाँ आके, बाहर आके पेंट करना। एनवायरनमेंट इज़ सो नाइस, सो इंस्पायरिंग और मज़ा भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है सारे के सारे आर्टिस्ट के लिए, आर्टिस्ट स्टूडेंट के लिए जो आज हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। जो एक्साइटमेंट है या फिर उनकी बोर्डम, उनका टायर्स, जितनी भी फीलिंग्स है वो सारी की सारी बाहर आ रही है। उतना ही नहीं, अगर आज के दिन की बात करें तो आज वैलेंटाइन डे भी है एंड आई एम वेरी मच श्योर यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट बैठे हैं वो सारे के सारे अपने आर्ट के साथ प्रेम में है। राइट? यस यस। राइट ऑल ऑफ यू? यस। सो हाउ आर यू ऑल फीलिंग हियर टुडे? वेरी मच फाइन। एक्सीलेंट। कैसा लग रहा है यहाँ पे बीच में बैठ कर, नेचर के बीच में बैठ के पेंटिंग? बहुत मजा आता है ना? जो छोटा बच्चा वीडियो गेम खेलता है, गन वाले गेम, वो जो बंद कमरे में खेलता है, और रियल जो सरहद पे भेज देते हैं, Exactly. वो जो फीलिंग आता है वो फीलिंग हमको आ रहा है। That is very good example. हमारे साथ है आंटी। आंटी आप क्या पेंट कर रहे हैं, बताएंगे अपनी पेंटिंग के बारे में कुछ? मैंने एक आई ली है और उसके अंदर एक पोर्ट्रेट लिया है। सो मैंने कुछ डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन सोचा है
सो सबका कलरफुल है तो मैंने ब्लैक एंड वाइट में कुछ अलग करने को सोचा। अच्छा, सो क्या एक्सपीरियंस रहा आज आपका यहाँ पे नेचर में बैठ के पेंट करने का? नेचर में हम सर के स्टूडियो में बैठ के काम करते हैं और वो सब साथ वहाँ पे सब साथ में बैठ के और यहाँ पे नेचर में खुली हवा में काम करते फीलिंग क्या पेंट कर रहे हो आज आप यहाँ पे? मैं फूल पे रिसर्च कर रहा हूँ अभी। अच्छा, थोड़ा वाटर, इसके पहले वाटर कलर पे ट्राई किया था, अब बाद में एक्रेलिक पे आया। और कैसा लग रहा है नेचर के बीच में काम करने में? बस अब पहले क्लास में काम करते थे, अभी यहाँ पे आए, कुछ अलग दुनिया में है, ऐसा लग रहा है। होप यू आर एंजॉयिंग हियर विद एवरीवन, राइट? सो हियर इन नेचर ये जो सारे के सारे आर्टिस्ट हैं अपने स्टूडियो में बैठ के काम करते हैं, लेकिन आज नेचर के बीच में बैठ के काम करके अपना अपना स्पॉट डिसाइड करके बैठे हैं और अपनी जगह ढूंढ के उस पर काम कर रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो चिराग भाई हमारे साथ हैं। हेलो चिराग भाई। हेलो। क्या कर रहे हैं आप? बस ड्राइंग कर रहे हैं अभी, और आज का जो माहौल है उसमें जो नेचुरल वाइब्रेशन जो मिलते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी बहुत ही हमें अच्छा और माहौल मिलता ये है। जगह कैसी लगी आपको? बहुत ही बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, फुल ऑफ एनर्जी वी गेट एंड होप वी विल बी बेस्ट। थैंक यू। सारे के सारे स्टूडेंट चार दीवारों को तोड़ के यहाँ पे नेचर के बीच में बैठे हैं। अगर आप देखें वहाँ पे हिल्स है, लेक है, ग्रीन्स है, बहुत ही खूबसूरत जगह है और हर एक स्टूडेंट ने अपनी अपनी जगह खुद से डिसाइड करके वो लोग बैठे हैं। हेलो, हाय हाय, क्या चल रहा है यहाँ पे? व्हाट आर यू पेंटिंग? डॉक्टर अच्छा, आप प्रोफेशन से डॉक्टर हो और यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हो, कैसे हुआ ये? आयुषी आपकी जर्नी हाँ, बताइए। वो डॉक्टर भी हैं। मैं 3 साल पहले विनोद सर से मिली, मतलब मेरे फ्रेंड के कॉन्टेक्ट से, और उन्होंने मुझे गाइड करा। मैंने पहले पेंसिल वर्क स्टार्ट किया, सर ने धीरे धीरे स्टेप वाइज हम लोग को आगे बढ़ाया और अभी हम लोग को सर एक्रेलिक करवा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। तो आज यहाँ पे स्टूडियो में और यहाँ पे क्या फ़र्क है पेंटिंग करने में? स्टूडियो में तो मज़ा आता ही है, वहाँ पे एक एनर्जी मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो गॉड ने दी है वो एनर्जी भी साथ में मिलती है। सर तो है ही साथ में, आपके साथ में कुदरत का भी एनर्जी है। एग्जैक्टली एक चांद से नेचर से कनेक्ट करने का अगर देखें तो। इधर रिवर भी है, माउंटेन्स भी है, स्टोन्स भी है, रॉक्स भी है, सब कुछ है और ट्रीज भी है, तो बीच में बैठ के बहुत मज़ा आता है। तो अगर देखें यहाँ पे चारों ओर सब भगवान ने क्रिएट किया हुआ है। अगर एक तरीके से देखें तो गॉड इज़ एवरीवेयर एंड वी कैन सी गॉड हियर एवरीवेयर, और एक तरीके से भगवान से कनेक्ट करने का तरीका है भगवान की ही दी हुई गिफ्ट जिसको हम आर्ट कहते हैं, वही आर्ट के ज़रिए हम भगवान को ढूंढते हैं। तो लेट्स सी हियर फातिमा। हाय फातिमा, कैसे हो? आई होप यू आर एंजॉइंग हियर। कैसा चल रहा है आपका पेंटिंग यहाँ पे? अच्छा चल रहा है, इट्स वेरी गुड। नेचर के बीच में फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस है ये मेरा, एंड मैं ऑल द वे विरंगाम से यहाँ पे आती हूँ, अहमदाबाद। दैट इज कूल। तो आप विरमगाम से डेली यहाँ पे विनोद सर के पास सीखने के लिए आते हैं, दैट इज राइट? तो आप बताइए स्टूडियो में और यहाँ पे काम करने में क्या फ़र्क है? यहाँ पे क्या ज़्यादा अच्छा है या फिर स्टूडियो के क्या पॉजिटिव वाइब्स क्या है? पॉजिटिव वाइब्स मुझे स्टूडियो में भी अभी तक बहुत अच्छे से मिलते थे, बिकॉज़ मुझे बहुत ही मेंटली और बहुत ही फ्री रहती थी, बट यहाँ पे आके और अच्छा लग रहा है कि नेचर के बीच में हम लोग जो कर रहे हैं वो सब, और जो लाइव पिक्चर बना रहे हैं वो और कुछ ज़्यादा सीखने के लिए मिल रहा है हमें। हाय परिता, कैसा चल रहा है आपका पेंटिंग? बहुत मज़ा आ रहा है। तो क्या पेंट करें, आपकी पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए। मैं एक रोटली का फॉर्म लिया है जो पेंट कर रही हूँ। गैस पे रोटली हम सेकते हैं वो वाला पेंट कर रही हूँ, तो अभी इसका बैकग्राउंड पेंट कर रही हूँ। इसका थर्ड लेयर चल रहा है अभी। अच्छा, तो आप आई थिंक बार सर के साथ कैंप में गए हैं। कैंप में आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? क्या बताइए? कि हम स्टूडियो में तो काम करते हैं पर
एनवायरनमेंट मिलता है उसका एक अलग ही है। और जो कलाकार को साधना करनी चाहिए ना, वो नेचर के बीच में रह के हम कर सकते हैं। अच्छा, तो इतने सारे पेंटिंग के टॉपिक्स हैं, उसमें से आपका कौन सा फेवरेट है? जैसे लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, स्टिल लाइफ अभी है। तो मैं स्टिल लाइफ पे एकेडमिक वर्क कर रही हूँ। अच्छा, ये मेरा फर्स्ट कैनवास का एक्सपीरियंस है। पहले बहुत डर लग रहा था। तो हेलो दृष्टि, कैसे हो आप? बहुत आई होप यू आर एंजॉयिंग हियर। क्या कर रहे हो? आपकी पेंटिंग्स बताइए कट प्लीज। कर दे। तो क्या फ़र्क लगा आपको स्टूडियो में और यहाँ पे नेचर के बीच में? साइलेंस, पीस, बहुत सारी जगह है जो आप कैप्चर कर सकते हो अपनी ड्राइंग बुक में। जब क्लासेस में होते तो इतना सब लाइव नहीं दिखने को मिलता। इतने टॉपिक्स नहीं मिलते, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो फिर आपने आपका टॉपिक कैसे डिसाइड किया कि आपको यही पेंट करना है? मुझे वो एक्चुअली व्यू बहुत अच्छा लगा था, फर्स्ट कैप्चर मेरे इसको, इसलिए। अच्छा, सो दिस इज़ योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, राइट? Yes, आई होप यू एंजॉय हियर। थैंक यू। गुड लक एंड एंजॉय। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ आयुषी कि मैं इनको इन लोग पहली बार मेरे साथ आए हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आके गए हैं जो आर्किटेक्ट, इंटीरियर, फैशन डिजाइनिंग में उन लोगों ने काम भी किया है और अभी करते हैं। तो मैं तो कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ उनकी जो पेशेंस है अंदर की, जो संगीत है, चित्र है और एक मतलब पेंटिंग है, बहुत सारी है, तो उनको बाहर लाने का है ना, तो लोगों के बीच में जाना चाहिए। मैं लोगों को बीच में ले जाना चाहता हूँ। तो यहाँ आके लोग देखते हैं, जैसे गांव के लोग भी यहाँ पर आके देखते हैं। तो उनमें एक बच्चा भी बोलता है कि मेरे को भी आर्ट अच्छी लगती है। मैं कैसे सीखूं, कैसे ट्राई करूं। जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे को मिले, बोले कि सर आप क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये जो क्यूरियोसिटी है ना, आदमी को कहीं ले जाती है। तो मैं तो आम पब्लिक को भी बोलता हूँ कि आपके बच्चों को कोई गैलरी बताओ ना, मॉल और थिएटर क्यों बता रहे हो? गैलरी में को पता चलेगा कि नहीं, कहीं लोगों का एक वर्ल्ड का बेस्ट पेंटर भी है उसके अंदर आ रहा है। और अगर देखें तो चार दीवारों के बीच में बैठ के पेंटिंग कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन हो जाती है। यहाँ पे पूरा फ्रीडम मिल जाता है, टॉपिक का फ्रीडम मिल जाता है, कलर्स का फ्रीडम मिल जाता है। नेचर में है तो नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो शायद आर्ट में अगर वो उतार सके तो आर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सकता है। हमारे इंडिया में ये फ्रीडम बहुत कम आर्टिस्ट के पास होती है कि बाहर नेचर के जाके वो वर्क करे। ये तो मैं एक तरीके से ये कर देते तो आशीर्वाद। हाँ, ये सही बात है, तेरी बात सही है। जी आयुषी, ऐसा है ना कि कभी कभी मेरे को यहाँ पे बच्चे जो ड्राइंग करते हैं उनमें से मेरे को कुछ सीखने को मिलता है। कैसा कि कोई बच्चा एक ट्री का एनाटॉमी अच्छा करता है, कोई स्टोन की एनाटॉमी क्या होती है, हार्ड फॉर्म है, वो सॉफ्ट फॉर्म है, तो जो है ना वो शायद उसको कहीं ले जाता है। तो वो किसी को मालूम नहीं है। चार दीवारें जो है ना, एक कंक्रीट का जंगल बन गया है। स्कूल का एक ड्राइंग रूम होता है ना, एक लिमिटेशन होते हैं गवर्नमेंट्स के, और जो भी जो एक फॉर्मेलिटी होती है उनकी, उसकी वजह से वो बाहर नहीं जा सकते। मगर मेरा दिमाग ऐसा था कि मैं हर दिन लर्न करता हूँ। नॉट आई एम अ परफेक्ट मैन। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि कभी मैं ही परफेक्ट हूँ। मैं तो यही सोचता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं, मगर शायद मेरे काम से कोई एक कॉर्नर में से पड़ा हुआ आदमी बोले कि नहीं ये बंदा अच्छा काम कर रहा है। एग्जैक्टली सर, इवन आई एम इंस्पायर्ड बाय योर वर्क। एक्चुअली जब मैं 8वीं कक्षा में थी और आपने मुझे कैंप में चांस दिया था ज्वाइन करने का, एंड वी वेंट टू माउंट आबू। मुझे याद है हम वहाँ पे हर रोज चल के बहुत इंटीरियर जगहों पे जाते थे और दिन के 3 या 4 पेंटिंग करते थे। द वे आई कनेक्टेड विथ नेचर ओवर देयर, आई एम स्टिल कैरिंग ऑन दैट विथ मी राइट नाउ। तो उसी की वजह से आज मैं पेंटिंग में जो बन पाई हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट। उस टाइम से मुझे पता चला कि नेचर के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो अपने आर्ट में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आती है। चार दीवारों से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। कि नेचर में क्या है ना आयुषी, ऐसा है ना कि एक स्टोन में कितने कलर हैं, बच्चा देखेगा तो पता चलेगा। उसके स्टोन के अंदर एक स्कल्पचर भी है, यू नो। तो
स्टोन में उसको स्कल्पचर भी दिखता है, एक फोटोग्राफ भी फॉर्म दिखता है Exactly. और कलर भी दिखते हैं। जैसे नेचर, तो नेचर में मानसून के एटमॉस्फेयर अलग होता है, एक समर में अलग एटमॉस्फेयर होता है और एक विंटर में कुछ एटमॉस्फेयर अलग है। वो बसंत का पहचानना अलग सीखना Exactly. वो एक आर्ट होती है। Exactly. तो उनमें एक कलर पर्सपेक्टिव की जो बात है ना, Exactly. तो वो बन सकती है। और ऐसा भी कई सारे स्टूडेंट हैं हाँ। जो दो तीन आर्ट फॉर्म को मिक्स करके काम करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे साथ हेत बैठा है, हाँ, खुद अपना म्यूजिक लेके आए हैं यस। और म्यूजिक और आर्ट को कंबाइन करके यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं। हेलो हेत। तो वो जो ना ऐसे हेत का शायद मेरे को लग रहा है कि दिस इज फर्स्ट एक्सपीरियंस, ये पहली बार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मगर ये आज बंदा ये बोल रहा है कि सर हाँ डाउन करो, तो ये जो बंदा बोल रहा है ना, तो ऐसा बोल रहा है कि मेरे को सर ऐसा फील होता है कि मैं एक गॉड के पास हूँ, शिव के पास हूँ। उसने अपनी एक दिमाग से जो घर से इंस्ट्रूमेंट लेके आया म्यूजिक का और म्यूजिक के साथ काम करता है, तो उसने एक अच्छा सा कंपोजिशन भी किया है पेंसिल में, क्योंकि उसका फर्स्ट स्टेप है। हाँ। तो जैसे एलिमेंट्स होते हैं 6 एलिमेंट्स ड्राइंग में, तो उसको किस तरह से सिखाया जाए, हाँ। बरोबर है। तो उसके अंदर क्या पर्सपेक्टिव है, क्या कंपोजिशन है और मीडियम क्या है, पेंसिल, पेन, वाटर कलर, बहुत सारे मीडियम है। एग्जैक्टली। जब भी बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा लाइव, हाँ। तभी पता चलेगा उसको Exactly. तो किस तरह से काम करना चाहिए। Exactly. तो ये हेत का एक्सपीरियंस है, तो सी हेत भी बोल सकता है। मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, मैंने जो कहना था वो कह दिया। हाँ। So, हेत, आप अपनी पेंटिंग के बारे में कुछ बताएंगे? यस, जैसे कि सर ने बताया, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पे आया तब एकदम पीसफुल, सर ने बोला था सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे आने का है, सनराइज देखने का है। सो 4 बजे से हम लोग निकले हुए घर से, यहाँ पे शार्प 7:30 और 8 यहाँ पे पहुँचे थे। यहाँ का जो व्यू था, सनसेट सनराइज सीन था, बहुत अमेजिंग था। ऊपर से इतनी ठंडी, मजा आ गया। We also enjoyed in our drive. हमने Yes. जर्नी भी बहुत एंजॉय की, इतने सारे फोटोज लिए, we shouted, we were singing. जो सनराइज हो रहा था, जो क्लाउड्स थे, जो फॉग था, फार्म्स, ग्रीनरी एंड माउंटेन्स, इट वाज ब्यूटीफुल। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं ये सोचता हूँ, घर पे रह के या फिर 4 दीवार में अगर आप कुछ कर रहे हो तो सही है, नो डाउट। बट अगर आप बाहर निकल रहे हो, दुनिया के सामने आ रहे हो, या फिर कोई ऐसी क्वाइट प्लेस पे जा रहे हो जहाँ पे एकदम शांति है, आप अपने अंदर ही कुछ नया फाइंड कर पाओगे, अपना खुद का एक्सपीरियंस एक नया क्रिएट कर पाओगे, आपके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है वो बाहर निकाल पाओगे आप। सो आई एम थैंकफुल टू सर, ऐसी ट्रिप हर बार करें, हर महीने करें, मैं और रोज। हम सबको इनवाइट भी Yes. करें। वो तो मैं तो जाता हूँ हर दिन ऐसे में, तो इससे क्या मुझे एनर्जी मिलती है और शायद मैं यंग रह सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी गड़पण की लाकड़ी बन गई, मतलब बुढ़ापे की लाकड़ी बन गई, समझ गए ना। तो मतलब सर, मैं उसके लिए पहले बुढ़ा होना पड़ता है। हाँ बुढ़ा होना मतलब You are so आई नो बट getting old, मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक एनर्जी कहाँ से मिलती है, नेचर में से। आप लोग मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हो, क्यों करते हो? हाँ, नेचर में जाके तो सीधा डायरेक्शन कनेक्शन है, वो 4 दीवारों के बीच में कुछ नहीं है, वो तोड़ के निकलना पड़ता है। तो मैं तो वही चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे मूवमेंट में काम करते रहो और जिंदा रहो। बाकी बहुत सारे कैंप होते रहेंगे और मैं करता रहूँगा, तो मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मगर एक सामने लर्न करना और देना, मतलब बांटना और बेचना, दोनों में फ़र्क है। हाँ, तो बांटना किस तरह से और बेचना किस तरह से, वो बात अलग है मेरी। मगर बांटना है तो किस तरह से बांटा जाए। आर्ट में बहुत सारी डेप्थ है, तो बच्चों को बांटो, क्योंकि इनमें से बहुत सारे आर्किटेक्ट भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं और प्रोडक्ट डिज़ाइनर भी हैं। तो बहुत सारे लोग इससे जुड़ सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि मैथ्स किसी का लिखा हुआ पुस्तक पढ़ाओ और उसका ग्रामर के अंदर बच्चों को ढालो और उसको वही करने को बोलो। नहीं, बच्चा जब उसकी जो एबिलिटी है ना अंदर से निकलेगी। हर एक बच्चे में बहुत सारी एबिलिटी होती है, मगर खोजने का काम टीचर का होता है। आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ बहुत सारे लोगों को देखा, तो हर एक में कुछ एबिलिटी है, और जब ये सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा ना तभी पता जब चलेगा। आप एबिलिटी की बात कर रहे हो, तो एबिलिटी की बात से मैं जैमिन भाई और रक्षित भाई दोनों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने हमें यहाँ पे लाइव में और हमारा जो डॉक्यूमेंट्री बन रहा है दोनों में हमें हेल्प की है। सो थैंक यू रक्षित भाई एंड जैमिन भाई। वी आर ब्लेस्ड टू वर्क विथ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।